Hello students, welcome back to our channel. This is the second video of this chapter, the second session, class 7, English, chapter number 1, Where the Mind is Without Fear. This is the poem written by Rabindranath Tagore. In the previous session, I have explained you or given you some basic important information about the poet and related to this poem. Now, in this session, I will explain you each and every line of this poem. So let's start. First, we will recite the poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless starving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever whitening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Clear? Now I will explain you each and every line, so listen it very carefully. First line. Where the mind is without fear and the head is held high. In this, the poet prays to the Almighty. Almighty means God. भगवान से poet pray कर रहे हैं that his countrymen should be free from any kind of fear of oppression and forced compulsion. Now, in this line, where the mind is without fear, क्लियर वर्ड्स में हमें समझ में आ रहा है कि माइंड इज़ विदाउट फियर. जहाँ पे कोई काम हम बिना डरे करते हैं वो काम डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है. तो यहाँ पोएट ऑलमाइटी से प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उनके कंट्री मैन फ्री रहें फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फियर, मतलब बिना किसी डर के आगे बढ़ें, काम करें. मतलब उन्हें उनके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे या आगे क्या होगा. तो उनके माइंड में क्या होना चाहिए, बिना डरे काम करना है. ना ऑपरेशन मीन्स अत्याचार है ना, लाइक स्ट्रगल करना किसी चीज़ में. तो मतलब लाइक इन ओल्डर टाइम्स क्या होता था ना कि फोर्स कंपल्शन होता था कि मतलब यही करना है, इसके आगे तुम नहीं कर सकते कुछ. प्रिसाइज्ड वे में हर काम होता था कि नहीं इतना ही करना है, लेडीज़ घर के बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हैं, एजुकेशन का हक नहीं है. तो मतलब कंपल्शंस रहते थे, बाउंड्रीज सेट थी उनके लिए कि यही करना है, तुम इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते. तो पोएट जब ये पोम लिख रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उनके माइंड में ये था कि जब भी मेरा कंट्री फ्री होगा तब ऐसा होना चाहिए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हर एक इंसान अपने तरीके से काम कर सके बिना डरे, ना कोई ऑपरेशन हो, ना कोई फोर्स कंपल्शन हो, कुछ नहीं. He wishes that everyone in his country has his head high in dignity. Now वो ये विश कर रहे हैं उस टाइम जब उन्होंने ये लिखा है, वो ये विश कर रहे हैं कि हर कोई उनका कंट्री में जो पर्सन है, हर एक पर्सन का हेड हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, मतलब सम्मान से होना चाहिए. डिग्निटी मीन्स हेड हाई एंड डिग्निटी मीन्स सम्मान होना चाहिए हर एक इंसान का. डिग्निटी इट्स मीन दैट कि सेल्फ प्राइड है ना, मतलब जो हम कर रहे हैं हम सही हैं, इतना हमें पता होना चाहिए कि हम गलत नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट लाइन. So basically this whole line means in short word I will explain you that ki the poet wants a true freely country that should be fearless and should have the sense of dignity. Clear? Now come to the second line, where knowledge is free. Now it means that कि knowledge is free, it mean free of cost वाली knowledge की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. The poet is dreams of the nation. Poet dreams of a nation where knowledge is free.
Education should not be restricted to the upper class, to some portion of the society based on caste, gender and other barrier. Now, poet dreams over here that उनका nation जो हो वो knowledge, मतलब हर एक इंसान के पास नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट नॉलेज और वी कैन से हाफ नॉलेज भी बहुत डेंजरस होती है. सो आइदर पूरी नॉलेज हो, अच्छी खासी नॉलेज हो. तो यहाँ पे पोएट यही ड्रीम कर रहे हैं कि हर एक पर्सन को नॉलेज होना ज़रूरी है, हर एक पर्सन लिटरेट होना ज़रूरी है, एजुकेटेड होना ज़रूरी है. सो वो यही ड्रीम कर रहे हैं कि कंट्री कैसी होनी चाहिए, नॉलेजेबल. एजुकेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड. रेस्ट्रिक्टेड मीन्स पाबंदी वाली नहीं होनी चाहिए कि लड़कों को पढ़ना है, लड़कियों को नहीं पढ़ना है, या फिर अपर क्लासेस के लिए नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर लोग पढ़ सकते हैं और मिडिल क्लास एंड लोअर पीपल नहीं पढ़ सकते. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. टू द सम पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट, जेंडर एंड अदर बैरियर. मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए नॉलेज के ऊपर. हर एक इंसान का अधिकार है, हक है पढ़ने का. सो हर किसी को नॉलेज मिलना ज़रूरी है, तभी तो हम डिसीजंस ले पाएंगे ना. विदाउट नॉलेज वी कांट टेक द राइट डिसीजन. यस, बट एवरीबडी शुड बी अलाउड टू एक्वायर नॉलेज. हर किसी का हक होना चाहिए, है ना, to acquire knowledge. Not only that, the children should learn freely from the nature and the world around them. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बुक्स में से पढ़ रहे हैं, वहीं से ही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. नहीं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम आर नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड देम. क्लियर? हम नेचर में से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं. Next, in short word, I can say that कि poet wishes that his countrymen should awaken and broaden their minds by enlightening it with the power of knowledge. It's like कि मतलब वो poet चाहते हैं कि मतलब उनका हर एक countryman नॉलेजेबल हो, एजुकेटेड हो, हर किसी चीज़ की समझ हो, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और राइट ले सके डिसीजन. उसके हर एक डिसीजन करेक्ट हो, क्योंकि वो सेंसिबल होगा तभी तो उसके डिसीजंस करेक्ट होंगे. उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तभी डिसीजंस करेक्ट हो पाएंगे. तो नॉलेज एक्वायर करना इज़ मस्ट. तो ऑथर पोएट यही कह रहे हैं कि नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. तो हर किसी का अधिकार है, हक है नॉलेज गेन करना. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड लाइन. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स. एंड इन दिस ऑल्सो द फोर्थ लाइन combines that कि by narrow domestic walls. It's fragments means small pieces, छोटी छोटी pieces. Narrow means छोटी सोच. डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स एक ही कमरे में, ऐसा बोलते हैं ना, छोटी सोच के अंदर कैद हो जाना. दिस लाइन मीन्स दैट ओनली. सो लेट्स सी. In the next two lines, the poet emphasizes the unity of not only of his countrymen but also of the entire world. In these two lines, the poet is saying that कि unity होनी चाहिए, है ना. नॉट ओनली हिज कंट्री मैन बट ऑल्सो फॉर द एंटायर वर्ल्ड. सिर्फ हमारी कंट्री मैन के लिए ही नहीं. हाँ, यूनिटी मीन्स एकता, टुगेदरनेस, है ना, इकट्ठा. सो हमें हर किसी को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है ना, उसको अच्छे अच्छे थॉट्स देने हैं. मतलब इन द सेंस कि हमें पॉजिटिव रहना है इन एवरी सिचुएशन. सो पोएट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट कि हमें टुगेदरनेस क्रिएट करनी है, टुगेदरनेस वाली अवेयरनेस क्रिएट करनी है, यूनिटी में रहना है. सिर्फ हमारी कंट्री मैन के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं सोचे हम. कैसे कनेक्टेड रहना है, कैसे यूनाइटेड रहना है पूरे वर्ल्ड से, एंटायर वर्ल्ड. ही थिंक्स देयर शुड बी नो डिवीजन among people based on their caste, creed, color, religion or
other baseless superstitions. इट्स मीन दैट कि पोएट यहाँ कह रहे हैं कि हमें डिवीज़न नहीं करना है किसी चीज़ का, कि अगर वो हिंदू है तो वो अलग रहेगा, ये मुस्लिम है तो अलग रहेगा. नो, रिलीजन के बेसिस पर हम डिवीज़न नहीं कर सकते. नॉट इवन ऑन द कास्ट. और कास्ट मतलब तुम राजपूत हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते. हमें यूनिटी में रहना है. वी कांट डिवाइड anyone on the basis of caste. So हमें वो चीज़ अपने माइंड से निकालनी है. We are all together, we are all one. हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं. हमारे not even on the based of caste, color means like blacks and whites का रेशियो नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. हम सब एक हैं, यूनिटी में रहना है. सुपरस्टिशंस मीन्स कि अंधविश्वास वाली बातें, है ना. बेसलेस सुपरस्टिशंस, बहुत सारी सुपरस्टिशियस थिंग्स हैं जो लोग बिलीव करते हैं, जिनको हमें बिलीव नहीं करना है, नहीं करना चाहिए. In other words, prejudice and superstitions should not divide the people in groups and break their यूनिटी. इट्स मीन दैट कि ऑथर पोएट यहाँ कह रहे हैं कि हमें बेसलेस सुपरस्टिशंस पे बिलीव करके हमारी यूनिटी ब्रेक नहीं करनी है. एंड हियर प्रेजुडाइज मीन्स समथिंग अनजस्टिफाइड. अनजस्टिफाइड मतलब कुछ बेसलेस बातें, जिनका कोई रीज़न ही नहीं है, वो बातें, उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए. सुपरस्टिशियस इज ऑल्सो मीन्स दैट ओनली कि अंधविश्वास वाली बातें, कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. सो दिस इज सुपरस्टिशियस थिंग्स. प्रेजुडाइज इज सेम ओनली अनरीजनेबल थिंग्स और अनरीजनेबल सेइंग्स दैट कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. मतलब जिनका कोई रीज़न ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, बिना लॉजिक वाली बातें होती हैं ना, दैट इज़ प्रेजुडाइज. शुड नॉट डिवाइड द पीपल इन ग्रुप्स एंड ब्रेक द यूनिटी. तो ये सारी बातों से ना हमें एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, हमें कनेक्टेड रहना है, ग्रुप्स में रहना है ना, यूनिटी बना के रखना है. सो पोएट इज सेइंग दैट कि हमें फालतू बातों पे ध्यान न देकर हमें अपने माइंड को ब्रॉडन अप करना है, बढ़ाना है, और उन चीज़ों पर ध्यान देना है जिनमें लॉजिक्स हों, जिनमें कोई वैल्यू हो, जिन बात की लॉजिकल बात पे हमें ध्यान देना है, ना कि प्रेजुडाइज और सुपरस्टिशंस पे. क्लियर? इन दिस नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स, नैरो मीन्स छोटा, तो मतलब वही है कि छोटी सोच नहीं रखनी है. वी हैव टू ब्रॉडन आवर माइंड. बड़ा करना है, कुछ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में कभी नहीं लाने हैं. क्लियर? नाउ द फिफ्थ लाइन सेज, where words come out from the depth of truth. नाउ पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम सच्चाई की बात कर रहे हैं. सो टैगोर वॉन्ट्स अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल. टैगोर पोएट को ऐसा नेशन चाहिए जहाँ पे लोग सच्चाई से आगे बढ़ें, सच्चाई पे सच के कदम पर चलें. दे शुड नॉट बी सुपरफिशियल एंड वर्ड्स शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स. दे शुड नॉट बी सुपरफिशियल. सुपरफिशियल मीन्स कि वो क्या सोचते हैं, मतलब हम अपने बारे में ऑब्वियस थिंग्स होती हैं ना, कि हम जैसा हम सोच रहे हैं वही सही है. नहीं, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है. हमें ये सोचना है, हमें लॉजिक्स लगाने हैं हर चीज़ में, अपने माइंड को यूज़ करना है हर चीज़ में. ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल थिंग्स बोल दी हमने. वी शुड नॉट बी सुपरफिशियल. बेसिकली इसका ये मतलब है इस लाइन का कि जो सही है, जो फैक्ट वाली बातें हैं ना, वो हमें रखनी है, तो उनके बेसिस पर हमें आगे बढ़ना है. सो ऐसा नहीं कि कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना इन रियल लाइफ कि नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ वही सही है, सामने वाला तो कुछ भी बकवास कर रहा है, गलत बोल रहा है. नहीं, सामने वाले के लॉजिक्स भी करेक्ट हो सकते हैं, उसकी कही हुई बातें भी सही हो सकती हैं. आप सोचो, उसे सुनो, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो पता चलेगा कि सामने वाला फैक्ट
फैक्टलेस बातें कर रहा है या फैक्टफुल बातें कर रहा है. सो सुपरफिशियल नहीं होना है हमें, एंड वर्ड्स शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट, और दिल से सारी बातें आनी चाहिए. सच्चाई की राह पर चलेंगे, हमेशा लॉजिक्स ही रहेंगे हमारे माइंड में, फैक्टफुल बातें होंगी, कोई फालतू या नॉनसेंस बातें नहीं होंगी. तो पोएट इज सेइंग दैट कि मुझे ऐसा नेशन चाहिए जहाँ पे सारे के सारे लोग ट्रूथफुल हों, सच्चाई के रास्ते पर चले. नेक्स्ट लाइन, वेयर टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स towards perfection. Now here it means that कि tireless means बिना थके हमें perfection पे पहुंचना है. तो in this line Tagore wants everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection. So यहाँ टैगोर बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है. everyone to work hard to reach their goal. हमारे भी गोल्स फिक्स्ड है कि हमें लाइफ में ये करना है, यहाँ आगे बढ़ना है, इस फील्ड में जाना है. तो वही है कि हमारे माइंड में वो क्लियर है, और क्लियर होना ज़रूरी भी है, तभी तो हम अपने गोल पर पहुँच पाएंगे, तभी तो हम कहीं रीच कर पाएंगे. एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच, एंड फाइनली वी विल reach to the perfection. So same here, Tagore is saying we have to work hard. We have to work hard where we want to reach. Then we will reach to the success for sure. He thinks they should not be tired by working. टैगोर का मानना है यहाँ पे कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, हमें मज़े से काम करना है. हम जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे एंजॉय करके करना है. हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये काम करके थक गया. नहीं, एंजॉयमेंट के साथ अगर कोई काम होता है ना तो मज़ा ही बहुत अलग होता है. सो ही थिंक्स दे शुड नॉट बी टायर्ड बाय वर्किंग. काम से थकना नहीं है हमें. मतलब यहाँ थकने का मतलब वो नहीं है कि बॉडी रिलैक्स फील ना करें, नहीं. यहाँ ये है कि माइंड में थॉट क्लियर होना चाहिए. हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं ज़बरदस्ती ये काम कर रहा हूँ. नहीं, आपको जो काम अच्छा लगे वो काम आप करें, तो आप कभी थकान महसूस नहीं करेंगे, कभी बोरिंग महसूस नहीं करेंगे. हमेशा ये लगेगा कि मुझे और आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है. वो काम जो आप दिल से करना चाहते हैं, अगर वो काम करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं. People should not be lazy and ignoring their work. Now here poet is saying that कि people मतलब इंसान को कभी भी लेज़ी फील नहीं करना है, अपने काम को कभी भी इग्नोर नहीं करना है. इट्स मीन दैट कि हमें लेज़ीनेस नहीं दिखानी है अपने काम में, हमें इग्नोर नहीं करना है. बेसिकली अगर कोई काम अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं ना तो हम टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई काम हम दिल से करना चाहते हैं ना तो वो काम वो परफेक्ट होता है. तो यहाँ पोएट वही कह रहे हैं, वो काम वो गोल चूज़ करो अपना जिसमें आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, जिसमें आप दिल से चाहते हैं कि मैं वो काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. क्योंकि हमें पता है हम कोई ना कोई काम तो दिल से बहुत अच्छा कर सकते हैं. यस, तो पोएट भी वही कह रहे हैं यहाँ पे, जो भी काम लो दिल से करो. दिल से करोगे थकोगे नहीं, इग्नोर नहीं करोगे, लेजीनेस फील नहीं करोगे. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Now, clear stream means clear का मतलब समझ में आ गया आपको यहाँ पे, है ना? माइंड से बिल्कुल क्लियर रहना है हमें, कि हमें फोकस्ड रहना है. क्लियर मतलब फोकस्ड रहना है कि जो हम करेंगे सही ही होगा और हमें करना ही है, पूरा कंप्लीट करना है. सो इन दीज लाइन्स द पोएट कंपेयर्स अ रीज़न और लॉजिकल थिंकिंग टू अ क्लियर स्ट्रीम. यहाँ पे पोएट किसको कंपेयर कर रहे हैं? रीज़न और लॉजिकल थिंकिंग को किससे? क्लियर स्ट्रीम. अच्छा, क्लियर स्ट्रीम मैं बता दूँ, स्ट्रीम मीन्स कि नदी बहती हुई देखिए, क्लियर
क्रिस्टल वाटर आता है वहाँ से, है ना, साफ़ पानी दिखता है, बिल्कुल साफ़ पानी। तो हमारे रीजंस, हमारी लॉजिकल थिंकिंग भी वैसी होनी चाहिए। कोई चीज़, किसी टॉपिक पे अगर हम कोई बात कर रहे हैं या किसी टॉपिक को क्लियर करना है या कुछ भी करना है, किसी से बातचीत भी हो रही है, तो हमारे वर्ड्स जो है ना वो लॉजिकल होने चाहिए, रीज़नेबल होने चाहिए, फालतू में हवा वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब भी हम कोई बात करें, कुछ लिखें, टॉपिक डिस्कस करें, तो उसमें लॉजिक ज़रूर होना चाहिए। हवाएं वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हम उड़ा रहे हैं बातों को हवा में और रियलिटी में वैसी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, रियल में वो चीज़ होनी चाहिए। तो लॉजिकल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। तो पोएट भी यहाँ वही कह रहे हैं, जस्ट बी रीजनेबल, बी लॉजिकल थिंकिंग, एंड हियर इट कंपेयर्स टू द क्लियर स्ट्रीम। नेक्स्ट कंपेयर्स dead habits or superstitious beliefs to the dreary desert. Dreary desert means कि जिनका कोई मतलब नहीं है और मतलब सैडनेस, डलनेस। डेयरी डेजर्ट देखा है आपने? डेजर्ट देखा है ना, रेगिस्तान बिल्कुल खाली रहता है, कैसे रहता है, बेरंग सा और तो हियर इट कंपेयर्स डेयरी डेजर्ट को किससे कंपेयर किया है? डेड हैबिट्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ। वही जिनकी कोई वैल्यू नहीं है बातों की, जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, फालतू की बातें हैं, तो उनसे किसको कंपेयर किया गया यहाँ पे? डेयरी डेजर्ट। ठीक है, डेयरी डेजर्ट का मतलब ही वही है, सुपरस्टिशियस बिलीफ। सुपरस्टिशियस बिलीफ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को कि जिनका कोई मतलब नहीं है। He wants the stream of reason not to lose its way into the desert of prejudice. So यहाँ पोएट कह रहे हैं उनको वैसा चाहिए कि उनके लाइक मेरी कंट्री मैन के लोगों के थॉट्स क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन, रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डेजर्ट में, जैसे बेरंग सा डेजर्ट होता है ना, जिसमें डिस्करेजमेंट होता है, सैडनेस होती है, डल होता है बिल्कुल ही, तो वैसा नहीं होना चाहिए। डेजर्ट ऑफ प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। सो यहाँ वही बोल रहे हैं पोएट कि रीजनेबल लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इन शॉर्ट, people's thoughts should be monitored by rational thinking, not by superstitious logic. Should be rule over old baseless belief. पुरानी बातों पे ध्यान ना देकर ना, प्लीज़ बी लॉजिकल एंड अपने जो भी डिसीजंस हो, थिंक इट वेरी केयरफुली, लॉजिकली एंड रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं होना चाहिए कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था, एंड बेसलेस बिलीव्स नहीं होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। In these lines, poet wishes his countrymen to be progressive and broad-minded. Again it comes that कि narrow minded नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पोएट यही चाहते हैं, यही विश कर रहे हैं कि हर एक इंसान प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव मीन्स आगे बढ़े। और कैसे आगे बढ़ेगा? जब हम अपने माइंड को ब्रॉड रखेंगे, है ना। किसी चीज़ को एक कमरे में बंद कर दिया या फिर आपको बोल दिया कि नहीं, सिर्फ तुम्हें इतना ही काम करना है ना, तो आप सिर्फ उतना ही करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्रीली छोड़ दिया गया कि आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करें आप, तो हमारा माइंड क्या क्रिएटिव थिंकिंग करने लगेगा। सो दैट मीन्स ब्रॉड माइंडेड, है ना। हमें हर चीज़ में अपने लॉजिक्स लगाने हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। सो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी ही सही, और अपने गोल पर परफेक्टली पहुँचोगे। क्लियर? So we have to broaden our minds. He want that their minds are led forward आगे बढ़ना, and ever widening thoughts and action by the Almighty. Almighty is God. In short, we should be open-minded and do something unusual or extraordinary, overcoming the narrowness of mind. It means that कि यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा करना है जो अनयूजुअल हो। अनयूजुअल मतलब बाकी लोगों से अलग, है ना। जो सब कर रहे हैं वो करेंगे तो कोई मज़ा नहीं है।
हमें बाकी लोगों से अलग दिखना है, अलग बनना है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वी हैव टू डू। ऑर्डिनरी थिंग्स तो बाकी सब कर रहे हैं, नॉर्मल थिंग्स जो करते आ रहे हैं, बट वी हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ नया, कुछ अलग, डिफरेंट चीज़, कुछ अनयूजुअल करना है। तो वो कैसे होगा? व्हेन वी ओपन आवर माइंड, जब हम बहुत बड़ा सोचेंगे, छोटा नहीं कि इतना बोल दिया इतना ही करना है, नहीं, इससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका माइंड बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। सो फॉर दैट यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपको क्रिएटिव रहना है अपने माइंड से। सो उसके लिए माइंड को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। माइंड ओपन कैसे होगा? सुपरस्टिशियस बिलीफ से बाहर आएंगे, तब जाके हम कुछ लॉजिकल थिंकिंग और कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। नैरोनेस माइंड नहीं होना चाहिए, है ना, वही छोटी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू बी ब्रॉडन आवर माइंड्स। नाउ द लास्ट लाइन, into that heaven of freedom my father let my country awake। now it's mean that कि वो यहाँ कह रहे हैं फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स फ्री, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं वो। यहाँ माई फादर मीन्स गॉड, वो गॉड से कह रहे हैं लेट माई कंट्री अवेक, जगाओ, अवेयरनेस भेजो। In the final line of the poem, the poet addresses the god as father. Poet addresses the god as father. He asks him to awaken his country into such a heaven of freedom where the above conditions meet. Now here it means that कि जहाँ हम ये सारी conditions को ना fulfill कर सकें। So ऑलमाइटी से वो प्रे कर रहे हैं, वो विश कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के लोग जागें और सुपरस्टिशियस थिंग से बाहर आएँ, उन बिलीफ से बाहर आएँ और अपने जो पुरानी चीज़ें हैं, कस्टम्स हैं, उनको तोड़ें, ब्रेक करें और आगे निकलें, आगे बढ़ें, सच्चाई की राह पर चलें और पॉजिटिव रहें। To make it clear, the poet prays to the Almighty, my Father, to raise or lift, which means awake, है ना, जगाना किसी चीज़ को, his country to such heights where freedom would be realized at its best, a heaven of freedom. In turn, he actually praying that God awakens his countrymen so that they come out from the darkness of ignorance, prejudice, disunity and all other evils. It's mean that कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि उनके कंट्रीमैन को अवेकन करो, जगाओ, फ्रीडम दिखाओ, जन्नत दिखाओ। हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स मतलब अगर हम सच्चाई की राह पर चलते हैं ना तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत है ही नहीं वैसे भी। सो द पोएम इटसेल्फ सेज दैट वेयर द माइंड इज़ फ्री, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जब माइंड फ्री रहता है तो बिना डरे तो वैसे ही वो फ्री है ना, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कैसा भी सोच सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, जो हमारी मर्ज़ी हो वो हम करेंगे, क्योंकि उसमें ही तो अलग मज़ा है जीने का। सो यहाँ पे डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस मीन्स इन सब से हमें पीछा छोड़ना है, प्रिजुडाइज नहीं रहना है, मतलब वही पुरानी चीज़ों पर बिलीव नहीं करना है, जो इलॉजिकल चीज़ें हैं उन पर बिलीव ना करके हमें लॉजिकल थिंकिंग रखनी है। डिसयूनिटी नहीं होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हमें हर किसी का साथ देना है। किसी को अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वी हैव टू हेल्प हिम और हर। एंड अदर एविल्स मीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, बट नो, वी हैव टू बी पॉजिटिव विद आवर माइंड। फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि हम आगे बढ़ने के बारे में ही सोचें और हमेशा दूसरों की हेल्प करने के बारे में ज़रूर सोचें। ऐसा नहीं है कि हम ही आगे बढ़ते जाएं, दूसरों का भी हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स द यूनिटी वी हैव टू मेंटेन with a countryman, with the entire world. So poet is very positive in this poem and he is praying that कि freedom होनी चाहिए and उनकी country कैसी होनी चाहिए, without fear। तो हमारे mind को हम fear से दूर रखें, हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा सोचेंगे डेफिनेटली अच्छा होगा। तो यहाँ पोएट भी वही कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी वही कह रहे हैं दैट यू हैव टू ब्रॉडन योर माइंड,
माइंड को खुला छोड़ दो, बी क्रिएटिव, डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, एंड उसमें ऐसे घुस जाओ कि वो फील्ड ही तुम्हारी है। सो तुम कभी टायर फील करोगे ही नहीं, कभी थकोगे ही नहीं, माइंड से कभी नहीं टायरलेस फील करोगे या बोरिंग सा फील होगा नहीं। अगर जो काम हम दिल से करते हैं उसमें डेफिनेटली हमें सक्सेस एंड हम परफेक्शन पे ज़रूर पहुंचते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड अप ऑफ द पोम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, press the like button and share your views in a comment box. Thank you.